Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss 10 important question of linear algebra which is asked in CSIR NET and IIT JAM. Now let's start. The question number 1 which is related to orthogonal matrix. For a matrix A, the order of matrix is n cross n, 3 cross 3 as a given below. So which of the following satisfy a raised to 6 is equal to identity? That means there are 4 options in which there are 4 matrix, and we have to decide which matrix satisfy the given identity, that is a raised to 6 is equal to identity. Means हमारे पास 4 ऑप्शन है और इस ऑप्शन में से डिस्कस करना है कि कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है कि उसकी 6 पावर करने पे आइडेंटिटी आ जाएगा. तो फर्स्ट रिकॉल करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट यहां पे हमें जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो ये कि अगर सपोज एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 ऑर्डर की जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है वो कंस्ट्रक्ट कुछ इस तरीके से करते हैं कि सपोज इफ यू प्लेस 1 हियर देन देयर इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम इज 0. मीन्स अगर हमने किसी भी प्लेस पे 1 पुट कर दिया तो जिसकी इंटरसेक्शन रो और कॉलम होगी वहां पे 0 पुट करना है, और बाकी जो 4 प्लेसेस है वहां पे कुछ इस तरीके से एंट्री लिखना है, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा and cos theta. So this is the construction of orthogonal matrix of order 3 cross 3. Now the 4 option given in question number 1 or question number 211 is orthogonal matrix. Now there are 4 options. By using the property of orthogonal matrix, we check the which option satisfy the given condition. Now the property is that if we take the power of a, that is a raised to n, then just this power multiply or apply on the angle, that is a raised to n is nothing but 1 0 0 0 0 cos n theta, sin n theta, and minus sin n theta and cos n theta. By using this simple property, you can check the option B, only matrix B satisfy the given condition, that is if we apply here 6, and that is a raised to 6 is nothing but the cos 6 pi by 3, because power कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो therefore cos 6 pi by 3 is nothing but cos 2 pi and cos 2 pi is 1. Similarly here cos 2 pi is 1 and sin 2 pi is 0, and here sin 2 pi is 0. Therefore the diagonal entry is 1 and rest are 0. So therefore the only you can check the only B option satisfy that a raised to 6 is equal to identity. Remaining A, C, D are not satisfy the given condition. Therefore only option B is correct. तो सिंपल इस प्रॉपर्टी का यूज करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की n पावर लेंगे तो सीधी जो वो n है वो उसके एंगल पे अप्लाई हो जाएगा. तो ये था हमारा जो कि रिलेटेड टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है परम्यूटेशन मैट्रिक्स का. तो जहां पे परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये है कि जो उसकी बैकवर्ड डायगोनल एंट्री है वो 1 है और बाकी रेजिस्टर 0. तो यहां पे हमें पहले एक मैट्रिक्स समझना है. अगर सपोज हमारे पास एक n क्रॉस n ऑर्डर का बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है. अब बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स मतलब जो बैकवर्ड डायगोनल होगा वहां पे तो नॉन जीरो एंट्री और रेजिस्टर 0. Now this matrix is backward diagonal matrix if every element are distinct or same. Now if all element are same means अगर diagonal पे same या distinct हो तो हम उसे diagonal matrix कहते हैं. अगर backward diagonal पे सारे एंट्री सेम हो तो हम उसे कहते हैं
कि वो एक बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे सारे एंट्री क्या है 1, तो ये कैसा हो गया बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स। और जब भी n क्रॉस n का बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स हो, then determinant of that matrix is nothing but the minus 1 raised to the greatest integer function of n by 2 into a raised to n, where a is the element in a backward diagonal. So here minus 1 raised to the greatest integer function n by 2, 1 raised to n and 1 raised to 1 is equal to 1. So therefore simple is 1 raised to n by 2. This is the answer. तो कितना सिंपल था कि सिर्फ हमें अगर ये प्रॉपर्टी पता हो तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो therefore the option A is wrong, the option B is correct, option C and D is wrong. So therefore the determinant of this matrix is minus 1 raised to the greatest integer function of n by 2. Now the question number 3 is, let A be a 5 cross 5 skew symmetric matrix, B be a 5 cross 5 symmetric matrix whose ijth entry is the binomial coefficient ij for ij between 1 to 5. Consider the 10 cross 10 matrix given in the block form, that is C A plus B and B. तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझे तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 5 क्रॉस 5. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5 क्रॉस 5 एंड B इज अ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ B मैट्रिक्स इज 5 क्रॉस 5. A is skew symmetric matrix and B is symmetric matrix. Now we know that कि if A is a odd order, then first property is the determinant of A is equal to 0 and trace of A is equal to 0. हमारे पास प्रॉपर्टी कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो डायगोनल एंट्री होती है वो 0 होते हैं, तो देयरफॉर जो ट्रेस होगा वो 0 होगा. और अगर कोई भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन देयर डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0. तो यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है. अब यहां से इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी एंट्री हैं वो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे. तो देयरफॉर हमें यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट निकालने. तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, A11, A22 ऐसे सॉल्व अप टू A55. ठीक है. अब A11 इज नथिंग बट 1C1, 2C2 सॉल्व अप टू 5C5. And we know that NCN is equal to 1. So therefore 1, 1, 1. So this is the information by using the given conditions. कि A अगर एक skew symmetric matrix है odd order का तो determinant 0 and trace is always 0 of any skew symmetric matrix. B एक symmetric matrix है और उसके सारे diagonal entry या फिर जो सारे entry है वो क्या होंगे, coefficient होंगे binomial coefficient के. तो देयरफॉर अगर हम डायगोनल एंट्री निकालेंगे तो डायगोनल एंट्री मतलब 1 1 A11 A12 एंड वी नो दैट कि NCN इज ऑलवेज 1. तो बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी फाइंड द मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स. वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 क्रॉस 10. मीन्स हमें एक 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है जिसे डिफाइन कुछ इस तरीके से किया है कि A B 0 A प्लस B. तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर कोई भी एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है तो अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसे एज ए नंबर ट्रीट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. फॉर एग्जांपल अगर सपोज इस मैट्रिक्स को हमने C डिफाइन किया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ C इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ B. एंड वी नो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इज determinant of A, since it is an upper triangular matrix, so therefore determinant is product of diagonal entry, that is determinant of A into determinant of B, and we know that determinant of A is 0, so therefore 0 into any element is determinant of B is equal to 0. so therefore determinant of matrix C is equal to 0. तो ये पहला ऑप्शन हो गया कि डिटर्मिनेंट सी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगी. तो इससे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन राइट.
नाउ अब सेकेंड वी हैव टू फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सी. A matrix, B matrix, 0 and A plus B. And trace is nothing but the sum of diagonal element. And we know that skew symmetric matrix है तो उसके सारे diagonal element क्या होंगे 0. We know that the trace of A is equal to 0. And trace of B is nothing but the sum of diagonal element. And we know that the diagonal entry are 1 and the matrix of order 5 cross 5. तो therefore 1 plus 1 plus 1 plus 1, क्योंकि हर एंट्री क्या है डायगोनल की 1 है और मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 है, तो अगर इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5. तो therefore जो ट्रेस ऐड करेंगे तो जो ट्रेस होगा सी का वो हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, दैट इज trace of A plus trace of B, and trace of A is 0 and trace of B is 5. तो therefore 0 plus 5 is equal to 5. तो अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट होगा और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा. द ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डिटरमिनेंट 1 और -1 होगा तो रॉन्ग. डिटरमिनेंट सी 0 कह रहा है राइट है. ट्रेस कह रहा है कि 0 होगा रॉन्ग क्योंकि ट्रेस क्या है 5. तो देयरफॉर ऑप्शन बी डी आर राइट एंड ऑप्शन ए सी आर रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 214. हियर एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स पी. मीन्स एस एक सेट है जिसके सारे एंट्री पी जिसके सारे प्राइम नंबर हैं सच दैट कि द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये इन्वर्टिबल होगा. मीन्स ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंपल एक सेट है जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर है. एक कलेक्शन ले लिया हमने, एक सेट ले लिया जिस सेट के अंदर सारे प्राइम नंबर होंगे, बट कंडीशन ये है सच दैट कि जो एक मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए. तो मैट्रिक्स हमारे पास -1 -2 0 2. तो इस सेट के अंदर ऐसे कौन से प्राइम नंबर होंगे जिससे कि जो ये ए मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल हो जाए. तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 3 -1 0 2 -2 0 -1 -2 एंड 2. अब डिटर्मिनेंट अगर इसका फाइंड करेंगे तो यहां से ये 6 हो जाएगा, -2 तो ये यहाँ पे -2 यानी कि 6 + 4 = 10. तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 10 आ गया. ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास यहां से इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 10 है. अब अगर इसे हम प्राइम फैक्टर्स में करेंगे तो ये कुछ 2 और 5 होगा. तो देयरफॉर अगर सपोज हमारे पास ये कह रहा है कि ZPZ कि जो मैट्रिक्स के सारे एंट्री क्या होंगे ZPZ होंगे. ठीक है, अगर मैट्रिक्स के सारे एंट्री ZPZ है, वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक. ये ग्रुप थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि Z/PZ इज आइसोमॉर्फिक टू ZP. बट इन ZP अगर हम सपोज Z2 लेंगे या फिर Z5 लेंगे तो यहाँ पे 2 and 5 ट्रेड एज ए 0. Since Z2 and Z5, that means 2 and 5 trade as a 0. So therefore the determinant of matrix is 0. तो therefore इस प्राइम नंबर में से जो हमने एक सेट लिया था कि सच दैट कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए. बट सपोज अगर हम इसकी सारी एंट्री ZP में अगर सपोज हम 2 और 5 लेते हैं तो therefore डिटर्मिनेंट 0. बट ये सेट के अंदर मतलब 2 और 5 नहीं हो सकता. तो therefore we can say that कि सेट S इज ऑल प्राइम नंबर P1 P2 सॉल्व अप टू Pn, ऐसे सारे प्राइम नंबर होंगे एक्सेप्ट 2 and 5. मीन्स सारे प्राइम नंबर जिसमें से 2 और 5 छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो हमारे सेट के अंदर कंसिस्ट करेंगे. अब ये ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन से ऑप्शन रॉन्ग है. नाउ क्वेश्चन 1 ये कह रहा है S contains all the prime numbers. तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि S के अंदर doesn't contains the element 2 and 5. therefore option A is wrong.
एस कंटेन्स ऑल द प्राइम ग्रेटर देन 10। हाँ, तो 10 से ग्रेटर जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे कंटेन करते हैं क्या सेट के अंदर? हाँ, तो सारे कंटेन करते हैं। एस कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर अदर देन 2 एंड 5। हाँ, तो 2 और 5 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर है, ये भी राइट है। डी कह रहा है कि एस कंटेन्स ऑल द ऑड प्राइम नंबर, तो ये रॉन्ग है क्योंकि 5 एक ऑड प्राइम नंबर है जो इस सेट के अंदर नहीं है, तो देयरफॉर डी ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.5 इज ए अगर हमारे पास एक n क्रॉस m मैट्रिक्स है विथ ईच एंट्री आर +1, +1, -1 और 0। मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके हर एक एंट्री या तो +1 होंगे या तो -1 होंगे या तो 0 होंगे, बट कंडीशन ये है कि हर रो में और हर कॉलम में एग्जैक्ट 1 +1 और 1 -1 होने चाहिए। यानी कि हर कॉलम में सिर्फ एक ही +1 होगा और एक -1 होगा। अब ऑप्शन ये दिया है कि द रैंक ऑफ ए इज लेस देन n-1, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू m, रैंक ऑफ n इज लेस देन m या फिर n माइनस लेस देन m। तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले कुछ एग्जांपल्स लेंगे और जिससे हम इसमें से काउंटर एग्जांपल देके इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अब जब सपोज अगर एक मैट्रिक्स बनाना है, सपोज हम 2x2 मैट्रिक्स का एक ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एंट्री कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि हर कॉलम में एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए। तो क्लियरली जब हम इस मैट्रिक्स का या फिर फॉर एग्जांपल हम m क्रॉस n का मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो यहां पे सपोज -1 +1 -1 +1 -1 +1। क्यों? क्योंकि इन एवरी कॉलम देयर एग्जैक्टली 1 -1 एंड 1 +1, तो देयरफॉर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां से सपोज हम इस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे तो क्लियरली 1 होगा, क्योंकि ऐड करने पे ये तो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर द ओनली वन नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। तो देयरफॉर इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 2 है। अब यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 2 है और m की वैल्यू कितनी है? 3। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि रैंक ऑफ a इज लेस देन n-1, तो क्लियरली रैंक a कितना है? यहाँ पे 1 है और 1 क्लियरली लेस देन 2 है, तो मतलब ऑप्शन 1 राइट है। सेकेंड कह रहा है कि a रैंक m के इक्वल होगा, तो 1 तो 3 के इक्वल नहीं था क्योंकि हमने m3 लिया था, तो देयरफॉर रॉन्ग। n कह रहा है कि लेस देन m होगा, बट n तो हमारे पास 2 हाँ, तो अब इसके लिए काउंटर एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे n माइनस लेस देन m। तो एक काम करते हैं, काउंटर एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। -1 +1 और -1 +1, ठीक है। अब बाकी सारे एंट्री को हम 0 ले लेते हैं। तो क्लियरली ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि इस मैट्रिक्स के जो सारे एंट्री है वो कितने हैं, मतलब एक कॉलम के अंदर एग्जैक्टली 1 -1 है और 1 +1 है, 1 माइनस से 1 +1 है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो कितनी है? मैट्रिक्स के ऑर्डर 4x2 है। बट ये ऑप्शन हमारा थर्ड ये कह रहा है कि जो n की वैल्यू है वो लेस देन m होगी, यानी 2 होगी, बट ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मींस ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। 4 कह रहा है कि जो n -1 लेस देन m होगा, बट अगर हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 इज नॉट लेस देन 2। तो देयरफॉर यहां से हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि हमने काउंटर एग्जांपल दे दिया। तो डिस्प्रूव करने के लिए हमें हमेशा काउंटर एग्जांपल लेते हैं। तो देयरफॉर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट ए एंड बी बी n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स सच दैट a b and ba is equal to 0 and a plus b is a invertible, which of the following are always true? कि कौन सी फॉलोइंग हमेशा ट्रू होगी। अब समझते हैं इस चीज को। अब पहले कंडीशन क्या दिया, गिवन जो दिया हम वो लिखते फटाफट। फर्स्ट गिवन ये है ए और बी, ये n क्रॉस n एक रियल मैट्रिक्स है, और कंडीशन ये है कि जो प्रोडक्ट करेंगे ए बी ए इज इक्वल टू 0, कि ए बी करने पे बी ए करने पे 0 आ रहा है, और a प्लस बी क्या होगा? इन्वर्टिबल, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट
नॉन जीरो होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन ये है कि द रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ बी के, बट ये तो कोई जरूरी नहीं है। वी टेक एन एग्जाम्पल, बाय यूजिंग एग्जाम्पल वी विल प्रूव दैट कि द रैंक ऑफ ए मे नॉट बी इक्वल एंड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक, हमें जीरो मैट्रिक्स चाहिए तो एक काम करते हैं बी को जीरो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि वो नॉन जीरो है या जीरो है। तो बी को हम जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे और ए को सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। क्लियरली आइडेंटिटी प्लस जीरो इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर ए प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा विच इज नॉन जीरो। तो देयरफॉर आई प्लस ए, तो बी को हम क्या दिए जीरो, तो आई प्लस जीरो कितना होगा आई, और आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1। तो देयरफॉर ये कैसा मैट्रिक्स है, आई प्लस जीरो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स का जो रैंक है, अगर हम ए मैट्रिक्स का रैंक यानी आइडेंटिटी का रैंक निकालेंगे तो 2 होगा, और जो जीरो का रैंक निकालेंगे यानी कि बी का रैंक कितना होगा 0। तो बट रैंक ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, बट ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब ऑप्शन 2 ये कह रहा है कि द रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, कि जो रैंक ऑफ ए प्लस बी और ये एन होगा। तो यहां पे हम दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक तो ये भी नो दैट कि द रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, सॉरी द रैंक ऑफ ए प्लस बी एंड इट इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ ए माइनस बी। कम ऑन, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, सपोज ये हम लेते इसे 1। अब सेकेंड ये है जिसे हम फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी कहते हैं, कि फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी ये कहता है कि द रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन द रैंक ऑफ ए बी माइनस एन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इससे ग्रेटर देन है और इससे लेस देन है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि द रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन दिस। तो देयरफॉर ए प्लस बी कैसा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर इसकी रैंक कितनी हो जाएगी एन। तो देयरफॉर द रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन, और रैंक ऑफ ए बी, बट ए बी कैसा है, जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, जीरो। तो जीरो सॉरी आई थिंक एन माइनस, हाँ ये साइड रहता है, तो हाँ तो ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इंटू बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा एन माइनस जीरो। तो देयरफॉर कोई वैल्यू अगर एन और एन के बीच में है प्लस रैंक ऑफ बी कितना हो जाएगा एन। तो मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है कि द रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी एन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज, in third option we will use the rank nullity theorem. We know that rank nullity theorem, the rank of A plus nullity of A is equal to number of vector, but ये n cross n मैट्रिक्स है तो कितना हो जाएगा n। Similarly the rank of B plus nullity of B is equal to n, क्योंकि B भी एक n cross n मैट्रिक्स है। And we have a result, और हमने सेकेंड में प्रूव किया कि the rank of A plus rank of B is equal to n है। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस नलिटी ऑफ ए। तो एन माइनस नलिटी ऑफ ए प्लस, और बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एन माइनस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन। तो यहां से ये एन एन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस नलिटी ए माइनस नलिटी ए को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो देयरफॉर द नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट एन। मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन यही कह रहा है कि द नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी भी कितनी होगी ए एन। यानी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी की वैल्यू निकाल रहे तो भी एन आ रहा है, या फिर नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी निकाल रहे तो भी एन आ रहा है। तो वहां पे हमने फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी का यूज किया और रैंक ऑफ ए प्लस बी का। यहाँ पे हमने यूज किया रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन लीनियर अलजेब्रा। तो हर साल इसके बेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होता बट इनडायरेक्टली इसका बहुत यूज होता है रैंक नलिटी थ्योरम, और कभी कभी तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि a माइनस बी इज इन्वर्टिबल। अब यहां पे हम सिंपल प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमेशा बताया जाता है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होगा, ये 12th स्टैंडर्ड में भी ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए रहता है कि a प्लस बी की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगी, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा इसलिए दिया जाता है क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका यूज नेट के एग्जाम में भी हो रहा है, बट ये 12th का क्वेश्चन रहता है कि द रैंक ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव होता है और यहाँ पे कंडीशन गिवन रहती है। ठीक इसी तरीके से ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। तो कितनी सिंपल प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो देयरफॉर यहां से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। अब यहां पे डिटर्मिनेंट अप्लाई कर सकते हैं हम। जब हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट एक नंबर है तो सपोज स्क्वायर को ऊपर लेके आ जाएंगे, बट ये कैसा है, नॉन जीरो नंबर है। तो नॉन जीरो नंबर है तो नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिटरमिनेंट a माइनस बी निकालना है तो जिसका रूट लेंगे तो नॉन जीरो नंबर का रूट भी नॉन जीरो होगा। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी इज नॉन जीरो, तो देयरफॉर a माइनस बी इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहां से हमारे पास ये भी शो हो गया कि जो a माइनस बी है वो कैसा मैट्रिक्स है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर यहां से हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ a इज नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ b। हमने एग्जाम्पल से प्रूव किया था, a के प्लेस पे आइडेंटिटी ले ली, b के प्लेस पे 0, या फिर हम b के प्लेस पे आइडेंटिटी लेके a के प्लेस पे 0 ले सकते हैं। तो ऑप्शन ये रॉन्ग। सेकंड हमने प्रूव किया बाय फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी। थर्ड हमने रैंक नलिटी का यूज किया, इस पे सिंपल 12 के बेस पे जो प्रॉब्लम थे उसका यूज किया। अब क्वेश्चन नंबर 217 ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है कि ए हमारे पास अगर एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसका रैंक n है विद रियल एंट्री, चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन ये दिया है कि a एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। तो a मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना, m क्रॉस n, और एक गिवन है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो n है। तो ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। अब ये कह रहा है कि ax इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन फॉर एनी बी। बट ये तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर n है, m क्रॉस n मैट्रिक्स का, तो ax इज इक्वल टू बी के लिए हर बार एक सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम काउंटर एग्जांपल लेके इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेंगे जिस मैट्रिक्स का रैंक तो n है, बट जो ax इज इक्वल टू बी के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा फॉर एनी बी के लिए। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि एक सपोज हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, सपोज 4 क्रॉस 3 है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो क्लियरली इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना है, 3 है। और बी एक वेक्टर ले लेते हैं सपोज, और बी एक वेक्टर ले लेते हैं सपोज ये हमारे पास 0 0 0 1। तो जब हम इसका एक एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, और यहाँ पे ये 0 0 0 1। तो यहाँ पे जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी, 4। तो वी नो दैट कि जब भी रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ कि जब एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की रैंक अगर सेम नहीं होगी तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो मतलब किसी भी बी के लिए अब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक अगर किसके इक्वल है, n के इक्वल है, यानी कि जो कॉलम है यहाँ पे 3 के इक्वल है,
तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स की अगर रैंक 3 है यानी कि n है तो हर एक बी के लिए सॉल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नाउ ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू 0 के पास हमेशा एक सॉल्यूशन होती है, वो होता है एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा होती है। तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन तो क्लियरली रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। अब थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन देन इट इज यूनिक। अगर इसके पास सॉल्यूशन होगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। अभी नो दैट कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर उसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल है और वो सपोज n के इक्वल है, तो वो क्या हो जाता है, हमेशा उसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। और मैट्रिक्स के पास सॉल्यूशन अरे किसी भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा, जब रैंक ऑफ ए और ए डी के इक्वल है। बट ये किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 यही कह रहा है कि अगर एक ए एक्स इज इक्वल टू बी के पास अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगी तो वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर y डैश ए इज इक्वल टू 0 है तो ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अरे फॉर नॉन जीरो y, और y डैश क्या है, y का ट्रांसपोज है। तो एक काम करते हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो y डैश i इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्लियरली y डैश इज इक्वल टू 0। अगर y का ट्रांसपोज 0 है तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे ये नॉन जीरो तो नहीं है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां से क्लियरली हमारा ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू बी के पास हर एक बी के लिए सॉल्यूशन नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल से डिस्प्रूव किया, ये तो क्लियरली रॉन्ग होगा। ये हमने प्रूव किया कि अगर इसके पास सॉल्यूशन होगी तो वो हमेशा यूनिक होगा। डी ऑप्शन भी रॉन्ग, तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसिडर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो होमोजीनियस से हमेशा याद रखना है कि होमोजीनियस अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसके पास सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे या तो इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यही दो ऑप्शन होते हैं। अगर n और m इक्वल है तो डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब ये कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू हैज अ सॉल्यूशन, तो हाँ, तो हमेशा इसके पास जीरो सॉल्यूशन तो होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकेंड ये कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसके पास कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ए एक्स इज इक्वल टू 0 है और n की वैल्यू ग्रेटर देन m है। मीन्स ध्यान देना, अगर मैं रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए यूनियन 0 लू, तो वी नो दैट एक चीज तो हमें पता है कि जो रैंक ऑफ ए होती है वो हमेशा लेस देन होता है द मिनिमम ऑफ एन और एम, जहां पे एन एम क्या है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये हमेशा लेस देन होगा किससे, एन से, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन एम है। तो अगर सपोज हम यहां पे रैंक ऑफ ए ले लेते हैं, तो रैंक ऑफ ए और ये दोनों से अगर सेम है तो ए का जो रैंक होगा हमेशा मिनिमम से लेस देन हो, इन दोनों का मिनिमम होगा, तो मतलब ये लेस देन एन है। तो क्लियरली वी नो दैट यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल होगा एन के, बट ये इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगी। और होमोजीनियस के अंदर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स वो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस।
यानी कि इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि ए एक्स इज इक्वल टू नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए एक्स हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। एंड लास्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट n माइनस m। तो ये तो क्लियरली रिजल्ट है कि जो डायमेंशन होता है सॉल्यूशन स्पेस का, अब सॉल्यूशन स्पेस मतलब जो भी हमारे पास नल स्पेस होगी, तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होगा डायमेंशन ऑफ स्पेस जो है वो एटलीस्ट n माइनस m होगा बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम, क्योंकि रैंक ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर यहां से नलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी n माइनस रैंक ऑफ ए। एंड वी नो दैट कि जो रैंक ऑफ ए होती है वो तो हमेशा मिनिमम ऑफ nm से क्या होता है, छोटा होता है। तो देयरफॉर अब ये वैल्यू तो m से कम ही होगी। अब इसमें से जैसे कि फॉर एग्जांपल nm की वैल्यू सपोज ये 2 और 3 है, तो यहाँ पे रैंक ए कितना होगा, मिनिमम 2 ही होगा। तो अगर इसमें से मैं n माइनस m कर देता हूं, तो ये वैल्यू अगर छोटी है तो n में से अगर मैं छोटी वैल्यू माइनस कर रहा हूं तो हमेशा बड़ी वैल्यू से क्या होगा, ये नंबर बड़ा होगा। तो ये तो सिंपल मैथ्स है। तो देयरफॉर कि जो नलिटी ऑफ ए है वो हमेशा ग्रेटर देन n माइनस 1 होगा। दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट n माइनस m, कि कम से कम कितना होगा, n माइनस 1 होगा। एंड वी नो दैट कि जो होमोजीनियस इक्वेशन का जो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, स्पेस सॉल्यूशन, वो हमेशा नलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती। अब क्वेश्चन नंबर 219, ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक रिजल्ट पे बेस है। मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट क्या है। मान लो अगर ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सपोज m क्रॉस n, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n इज n क्रॉस t, देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी इफ रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू n एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p, मतलब ये सेम होना चाहिए, तो जो प्रोडक्ट की जो रैंक होगी वो या तो a के इक्वल होगी या तो b के इक्वल होगी। अब a के इक्वल कब होगा, जब b मैट्रिक्स की रैंक n के इक्वल हो, और प्रोडक्ट ऑफ b के इक्वल कब होगा, जब a की रैंक n हो। तो इस रिजल्ट का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें ये कह रहा है कि P एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स की जो रैंक है और ऑर्डर जो है वो 4 क्रॉस 6 है। मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स है P जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 6, और Q एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के ऑर्डर है 5 क्रॉस 4, और हमारे पास गिवन है कि द रैंक ऑफ Q इज इक्वल टू 4 और रैंक ऑफ QP इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसका रिवर्स कर दें, P को ये साइड लिखें, तो ये तो सेम उसी तरीके से हो गया कि अगर ये 4 सेम है तो किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर 4 है तो जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के रैंक दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। दैट मीन्स जो रैंक ऑफ QP होगा, द रैंक ऑफ QP इज इक्वल टू रैंक ऑफ A। ये कब होगा, जब रैंक ऑफ B की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, या फिर इस मैट्रिक्स के रैंक B के इक्वल होगी जब A मैट्रिक्स के रैंक 4 होगी। बट गिवन क्या है, सॉरी यहाँ पे PQ हमने मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे PQ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये P होगा जब Q की रैंक 4 होगी और यहाँ पे Q होगा जब P की रैंक 4 होगी। तो बट हमारे पास गिवन क्या है, Q की रैंक 4 है, तो देयरफॉर P का रैंक कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि QP का रैंक कितना है, 2। तो देयरफॉर QP रैंक ऑफ QP एंड रैंक ऑफ P इज इक्वल सेम, तो देयरफॉर रैंक ऑफ P कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि रैंक ऑफ QP भी 2 है। तो सिंपल ये रिजल्ट से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 219 है वो सॉल्व हो जाएगा।
तो देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P एक मैट्रिक्स है, Q एक मैट्रिक्स है। P मैट्रिक्स की रैंक 4x6 है, Q मैट्रिक्स की रैंक 5x4 है, जिसमें Q का रैंक गिवन है, QP का रैंक गिवन है और P का रैंक पूछा है, तो P का रैंक क्या हो जाएगा, C। नाउ सॉल्यूशन नंबर 220, ये कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो वेन B1 B2 B3 इक्वल्स, तो किसके इक्वल होगा। अब इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। अब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अब किसी भी मैट्रिक्स कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लें, जैसे हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया ax इज इक्वल टू बी, इसके दो ऑप्शन होंगे, या तो नो सॉल्यूशन यानी कि वो इनकंसिस्टेंट है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट मतलब ये कि जो ए मैट्रिक्स रैंक है और जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक होगी वो कभी भी सेम नहीं होगा। तो मीन्स हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है कि द रैंक ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, देन वी से दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इज इनकंसिस्टेंट। इस प्रॉपर्टी का सिंपल यूज करके हम शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इज इक्वल टू B1, यहाँ पे B2 और यहाँ पे B3, तो x प्लस 2y माइनस जेड, यहाँ पे 2y माइनस 2z। तो अगर इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स होगा 1 माइनस 1 2 1 2 माइनस 1 2, और सॉरी यहाँ पे x का एंट्री नहीं है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और ये -2 सॉरी +2, और ये हमारे पास -2, मतलब ये मैट्रिक्स आ गया। तो अब इसको रब करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और यहाँ पे कुछ रो ऑपरेशन लगा के इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स को यहाँ पे अच्छे से अगर लिख दें तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 B1 1 2 -1 B2 और यहाँ पे 2 और 0 2 एंड -2 B3। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि R2 माइनस R1। जब R2 माइनस R1 अप्लाई करेंगे तो ये तो 1 -1 2 B1, ये हो जाएगा 0 2 माइनस 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 प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, और -1 -2 -3, और ये B2 माइनस B1। अब ये तो पहले से ही 0 है ऑलरेडी, 2 -2 B3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 -1 2 B1, यहाँ पे ये 0 1 -1 B2 माइनस B1 बाय 3, और लास्ट इंटू हो जाएगा 0 1 -1 B3/2। अब यहाँ पे हमें ये शो करना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंट्री 0, ये एंट्री 0, बट ये एंट्री 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो B3/2 है माइनस B2 माइनस B1/3, ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट। अब इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये 3B3 माइनस 2B2 प्लस 2B1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 2 0 0 3 2 2 2 1, और लास्ट ऑप्शन है 2 -1 और -2। ये भी IIT जैम का क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे हम B3 के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट तो 0, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 और -4 कितना हो जाएगा 0, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहाँ पे B1 के प्लेस पे अगर 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे 3 पुट कर देंगे B2 के प्लेस पे, तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग। अब यहाँ पे 2 2 पुट करेंगे तो B1 के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और B2 के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो -4 + 4 0, और यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 3, मतलब नॉन जीरो है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि IIT जैम का है तो ये ऑप्शन राइट, ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, बट फिर भी चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये 2 और ये माइनस, और जब यहाँ पुट करेंगे 2 3 जा 6, तो 4 + 2 + ये 6 0, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर
सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के। तो आई होप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और इसके अलावा जिन्होंने भी पहले स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के जो 21 लेक्चर, तो वो स्टार्टिंग के 21 लेक्चर देख ले, ताकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके एग्जाम से अच्छा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ठीक है, आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।